Assalamualaikum students, Mirza, and Usmani, let's wait for a while as students are joining. Then we are going to start a class. Thank you. Assalamualaikum students. Let's start with the class. So today our class is online. Okay, so we have an online session for today's class. So let's start with the class. कल की class के अंदर जो physical class थी, we discussed the basic classrooms, habits and etiquettes और उसके बाद हमारा जो एक remaining topic जो continuation के अंदर था, that was business environment is dynamic. So we completed that question and according to our past paper, 8 marks question जो हमारा था उसका we draw up an answer structure और marks structure को हमने discuss किया था. So moving ahead today, we are heading towards another topic that is stakeholders. So I want all of you to participate and concentrate that what is stakeholder, who are stakeholder. अच्छा, this is the word जो कि normally हम use करते हैं. जैसे कि for example कि हम अक्सर किसी को कहते हैं कि he is a particular person who has some stake in this particular business. ठीक है, और आप ये भी कहते हैं कि these days that I have nothing to stake. ठीक है, और for example आप ये कहते हैं कि मेरा इस business में stake है. So what is stakeholder? Who are stakeholders? Anyone? स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनके पास बिजनेस के साथ कोई भी कनेक्शन होता है. बिजनेस के साथ कोई भी कनेक्शन होता है. Anyone else? अरीबा, मिर्जा, अहमद उस्मानी, सलमान, सुहेब. जी बेटा सुहेब, any idea? सलमान, मिर्जा, अरीबा, अहमद उस्मानी. सॉरी उस्मान. अच्छा, स्टेक होल्डर्स को आप अंडरस्टैंड करिएगा कि अकॉर्डिंग टू साथ में कहा कि people or the individuals who has some sort of connection to our business. तो according to साथ it's a definition or it's a concept कि हाँ stakeholder वो सारे लोग होते हैं जो कि connected होते हैं with the business or with the business activity. अब let's break it down कि who are stakeholders. Stakeholders are the individuals who are connected to a business activity, whether directly or indirectly. अब इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा कि who are stakeholder. Let's take an example. For example, you are operating at a particular place, ठीक है, at a particular location. अब वहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं and you are a service provider and there is lot of flow of customer. ठीक है, you have high customer base, so there are number of customers who are going to visit at your outlet in order to avail your service. तो अब शाम की टाइम जो है वो फ्लो ऑफ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है.
ठीक है। तो जो आपके पी कार्ड्स होते हैं ऑफ ऑपरेशन दैट फ्रॉम 3 to 6 और 3 to 7, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो कस्टमर्स का फ्लो होता है। तो अब जब कस्टमर्स का फ्लो होता है तो यू आर द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विस, यू आर गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू, यू आर गोइंग टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम द कस्टमर्स। अब वहाँ पे ड्यू टू द फ्लो ऑफ कस्टमर दैट पर्टिकुलर एरिया फेसेस ट्रैफिक कंजेशन। अब उस एरिया में क्या हो गया, ट्रैफिक कंजेशन हो गया। अब जब ट्रैफिक कंजेशन हो गया है तो आसपास की कम्युनिटी और जो सोसाइटी और जो नेबरहुड के अंदर लोग हैं, दे आर गोइंग टू बी गेट अफेक्टेड बाय दिस ट्रैफिक कंजेशन। सही है। सो ये जो इंडिविजुअल्स हैं, सोसाइटी, कम्युनिटी, नेबरहुड के अंदर जो लोग हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज स्टेक होल्डर बिकॉज दे आर गेटिंग अफेक्टेड बाय द बिजनेस एक्टिविटी विच यू आर ऑपरेटिंग। सो दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन कि वो कहीं ना कहीं बिजनेस से अफेक्ट हो रहे हैं। अब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द सोसाइटी एंड द कम्युनिटी ड्यू टू द बिजनेस ऑपरेशन। नाउ लेट्स टेक अ पॉजिटिव एग्जांपल। तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं और दे हैव सम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट ऑन देम ड्यू टू द बिजनेस एक्टिविटी either positively or negatively. So we discuss an example of a negative impact on the society and the community due to the business operation. Now let's take an example of a positive effect of the business due to the particular business operation. तो आप जो सर्विस प्रोवाइड करें, फॉर एग्जांपल यू आर रनिंग कोचिंग सेंटर और शाम के जब इवनिंग क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आसपास के नेबरहुड के अंदर जो है ना वो लोग अफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द कस्टमर्स एंड द पेरेंट्स, तो फ्लो आपका बढ़ता है। बट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सिक्योरिटी आपने वहाँ पे नंबर ऑफ गार्ड्स लोकेट किए हुए, नंबर ऑफ गार्ड्स हाई किए हुए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ योर कोचिंग सेंटर। तो इस गली के कोने पे भी, उस गली के कोने पे भी, आउटसाइड द कोचिंग सेंटर, बैक साइड ऑफ द कोचिंग सेंटर, you have hired multiple guards in order to increase the security of your coaching center. अब जब सिक्योरिटी इंक्रीज हो गई है तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू फेस द कॉस्ट, यू आर गोइंग टू पे द गार्ड एंड यू आर गोइंग टू पे फॉर द सिक्योरिटी। लेकिन आसपास की जो सोसाइटी और कम्युनिटी, दे आल्सो फील सिक्योर बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गार्ड्स, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी व्हिच यू हैव हायर्ड। तो अब ये आपके बिजनेस एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी थी, जिससे दूसरे जो नेबरहुड के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोग हैं या उस कम्युनिटी के अंदर लोग हैं, तो जो स्ट्रीट पे उस रह रहे हैं, तो दे आर गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ द सिक्योरिटी विच द कोचिंग सेंटर हैज हायर्ड फॉर द पर्पस। तो ये हमारे पास कौन सा इफेक्ट हुआ, ये हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट। तो स्टेक होल्डर्स का मतलब ये है कि वो सारे लोग जो कि कनेक्टेड हैं विद द बिजनेस एक्टिविटी एंड दे गेट अफेक्टेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली विद द बिजनेस एक्टिविटी। जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा हो, दे कैन गेट अफेक्टेड पॉजिटिवली एज वेल। So stakeholders are the group of individuals who are connected and they get affected by the business activity whether directly or indirectly, positively or negatively. Is it clear? जी बेटा, अरीबा, मिर्जा, अहमद, साद, सलमान, सुहेब। जी सर, क्लियर। नाउ स्टेक होल्डर्स, अब हमारे पास जो लिमिटेशन है स्टेक होल्डर्स की, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि वो सारे लोग जो कि बिजनेस एक्टिविटी से कनेक्टेड हैं, सारे लोग, लिविंग पीपल, ह्यूमन बीइंग हु आर कनेक्टेड विद द बिजनेस एक्टिविटी वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे गेट अफेक्टेड बाय द बिजनेस एक्टिविटी ओनली। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम थोड़ा सा स्टेक होल्डर को ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे लेके चले आए। द ब्रॉड पर्सपेक्टिव of stakeholders. Now, what is broad perspective? Broad perspective को डिस्कस करते हैं। ब्रॉड पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि एक हमारे पास, जैसे मार्केटिंग इज अ टर्म, दैट इज अ ब्रॉड टर्म, जिसके अंदर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन नहीं है। वी हैव आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर नीड, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, रिसर्च अबाउट द डिमांड इन द मार्केट, प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट। तो ये मार्केटिंग जिस तरीके से एक ब्रॉड टर्म है, स्टेक होल्डर भी एक ब्रॉड टर्म है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ हैबिट। हैबिट क्या है बेटा? हैबिट हमारे पास वो बिजनेस है जो कि फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है। नाउ लेट्स कंसीडर कि हैबिट जो है वो डील करता है वुडन फर्नीचर के अंदर भी। अब वुडन फर्नीचर को वो मैन्युफैक्चर भी करता है और वुडन फर्नीचर को प्रोवाइड भी करता है टू द नंबर ऑफ कस्टमर्स। सो वी ऑल हैव सीन द आउटलेट्स ऑफ द हैबिट, ठीक है। इट्स अ फेमस फर्नीचर आउटलेट चेन जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो रन कर रही है एंड इट्स अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। तो हैबिट जो है वो वुडन फर्नीचर के अंदर डील करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि हाउ हैबिट इज गोइंग टू अफेक्ट द स्टेक होल्डर्स। तो हैबिट जो है वुडन फर्नीचर के अंदर डील करता है। नाउ लेट्स कंसिडर कि हमारे पास अमाउंट ऑफ कंपटीशन कम हो गया है वहाँ पे,
जब अमाउंट ऑफ कंपटीशन कम हो गया है बिकॉज ऑफ एनी इशू, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान इज नॉट एन अट्रैक्टिव मार्केट फॉर दी अदर कस्टमर अदर कॉम्पिटिटर्स, या फिर हैबिट ने एक दावत रखी जिसके अंदर सारे प्रोड्यूसर्स को जहर दे दिया, अब बचा कौन से हैबिट। तो अब हैबिट जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब जब हैबिट की डिमांड बढ़ी है तो हैबिट की डिमांड क्यों बढ़ी है? बिकॉज ऑफ द लेस कंपटीशन इन अ मार्केट। अब जब हैबिट की डिमांड बढ़ गई है ड्यू टू लेस कंपटीशन इन द मार्केट, सो ऑटोमेटिकली हैबिट नीड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन और needs to increase the supply in order to fulfill the gap in the market. तो कस्टमर्स तो वही हैं लेकिन कॉम्पिटिटर्स कम हो चुके हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स कम हो चुके हैं। तो इसकी वजह से हैबिट की जो डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड इफ हैबिट wants to satisfy the demand, so habit needs to increase the production capacity and the supply in order to satisfy the demand. तो अब हैबिट जो है वो अपनी प्रोडक्शन को और सप्लाई को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब जब हैबिट अपनी प्रोडक्शन और सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है तो इसके लिए इसकी जो रिक्वायरमेंट फॉर रॉ मटेरियल होगी वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नाउ हैबिट विल नीड मोर रॉ मटेरियल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, और अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो रिक्वायरमेंट फॉर रॉ मटेरियल भी बढ़ जाएगी। तो नाउ हैबिट is going to be involved in high rate of deforestation. Habit involved हो जाएगा in cutting of trees, ज़्यादा trees को cut करेगा in order to satisfy or in order to increase the raw material. तो अब जो कटिंग ऑफ ट्रीज हो रही है तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन या इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर जो ट्रीज हैं, सो ट्रीज बेसिकली प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द वुडन फर्नीचर और टू द वुडन आइटम्स या फिर पेपर या स्किल। तो अब हैबिट जो है वो डिफॉरेस्टेशन कर रहा है। तो अब जो ट्रीज है दे आल्सो बिकम द स्टेक होल्डर। ये जो ट्रीज है हमारे पास दे आल्सो बिकम द स्टेक होल्डर बिकॉज ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो ट्रीज है वो भी तो हमारे पास स्टेक होल्डर बन गए, वो भी तो बिजनेस एक्टिविटी से अफेक्ट हो रही है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ये जो बिजनेसेस हमारे पास पॉल्यूशन करते हैं, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तो ये जो एयर पॉल्यूशन हो रही है ड्यू टू एमिशन ऑफ गैसेस एंड स्मोक, तो ये जो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, दिस इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट आल्सो हैज बिकम द स्टेक होल्डर। तो वो सारी स्पीशीज, वो सारे लोग जो के बिजनेस एक्टिविटी से अफेक्ट हो रहे हैं, दे ऑल नोन एज द स्टेक होल्डर। तो अब जो 2016 से है वो हमारा पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेक होल्डर काफी ब्रॉड हो चुका है। ठीक है, इट्स नॉट रिलेटेड और इट्स नॉट लिमिटेड टू द ह्यूमन बीइंग, इट्स रिलेटेड टू द इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट, मरीन लाइफ। तो ये जो प्लास्टिक डंपिंग ऑफ प्लास्टिक है या यूज ऑफ प्लास्टिक है या इम्प्रॉपर डंपिंग ऑफ वेस्टेज है, इट अफेक्ट्स द मरीन लाइफ। जितने भी हमारे पास फिश है और जितनी भी मरीन लाइफ है, दे आल्सो गेट अफेक्टेड। नाउ डेज फेसबुक पे हम देख रहे होते हैं ना कि प्लास्टिक जो है वो कंज्यूम किया जा रहा है बाय द मरीन लाइफ। ठीक है, सो इट कैन लीड टू दी इट इंडेंजर्स द मरीन लाइफ और इन सारी चीजें। तो अब यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सिलेबस we only need to understand that who are the people who are connected to the business activity and they get affected. But for the general knowledge or for the sake of knowledge, we should have a broad perspective कि ये जो हमारे पास community, ecological environment, green environment, marine life, they also have become the stakeholder. तो स्टेक होल्डर हर वो लिविंग चीज है जो कि बिजनेस एक्टिविटी से अफेक्ट हो रही है, या तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पॉजिटिवली या नेगेटिव। ऑल्सो इज इट क्लियर बेटा? जी समझ आ रहा है सर। जी बेटा, सुहेब, सलमान, अरीबा। जी सर। Ajay. Now, types of stakeholder. So we have two different types of stakeholder. Number one is internal and number two is external. Internal का मतलब क्या है? Internal का मतलब है within an organization. External का मतलब है outside an organization. अब इंटरनल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमारे पास क्या है कि विद इन द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हु आर द पीपल दैट आर फाउंड विद इन द प्रेमिसेस और विद इन द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड एक्सटर्नल का मतलब क्या है? दैट दे आर आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर कनेक्टेड बट दे रिमेन आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, सो दोज आर एक्सटर्नल। So we have two different types of stakeholder, internal and external. So how you are going to define stakeholder? Stakeholder are the group of individuals
who are affected by the business activity, whether directly, indirectly, positively, negatively, and there are two types of stakeholder, internal and external. So हम जो है यहाँ पे start करेंगे. We are going to learn about the different groups and we are going to identify either they are internal or external. So let's start. Groups. Number one, we have owners, managers, employees, suppliers, government, banks, customers, community, shareholders, pressure. So these are the different stakeholder group that are connected and those who are affected by the business activity, whether direct or indirect. So we have owners, managers, employees, suppliers, government, banks, customers, community, shareholders, and pressure group. So let's start with the owner. Owner कौन होते हैं? Owner are the individuals. They take risk. They combine factors of production. They own the resources. They allocate the resources, and they decide what to produce, how to produce, and simply they control and manage the business. So owners are the individuals. They actually own the business. They control the business. They are known as the controller of the business as well. They are the decision maker. They manage the resources. They manage the workforce, and they carry out the business activity, production of goods, and provision of services. So these are known as the owners. तो owners की जो हमारे पास basic objective होता है, that is to maximize the profit. Profit maximization is the basic and the primary objective of the private sector producers. तो जो owner होते हैं of the private sector, as we have studied private sector businesses as well. So private sector के अंदर जितने भी businesses हैं और जितने भी private individuals हैं, we have taken the risk in order to maximize the profit. तो अगर for example हमारे पास कोई public sector business है, उसका aim different हो सकता है. They can be involved in social welfare or the provision of needs. But private sector जो businesses होंगे, they are going to maximize the profit through their business operation, because this is the primary objective. Why they have taken the risk? Why they have taken the financial risk? Why they have invested so much into the business? Because of the profit. The profit maximization is one of the basic and the primary objective of the private sector business. और profit maximization के साथ साथ they have an aim of efficiency as well. Okay, they need to maintain efficiency in their business processes so that they can cut down their cost and they can earn higher profit. तो automatically जब efficiency होगी, wastage of resources कम होगी तो cost of production कम हो जाएगी, और जब cost of production कम होगी तो automatically profit will be maximized. Then we have managers. Who are managers? Managers are known as the controller of the businesses. They manage, they lead the workforce. ठीक है, they take decisions, some of the decisions जिनकी इनके पास authority होती है. So they overall lead the workforce. They organize the resources. They manage the resources. ठीक है. So manager का जो objective होता है वो ये होता है कि वो business को क्या करे, expand करे. So expansion is one of the objective of the manager. बाकी managing the business efficiently to make the most use of resources in an organization, ये तो सारी चीजें. लेकिन expansion is the ultimate goal of the manager, because manager is an employee of an organization. Manager works under the owner. Manager works for an organization. तो in the end उसे compensation for work मिलता है, उसे salary मिलती है, उसे benefits मिलते हैं, उसे different facilities मिलती है. तो अब जो manager है, why manager wants to expand the business है? मैनेजर इसके लिए एक्सपेंशन चाहता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि देयर इज अ मैनेजर ऑफ अ लोकल कंपनी. अब जब एक लोकल कंपनी का मैनेजर है तो लोकल कंपनी में जो मैनेजर होगा उसकी सैलरी, उसके बेनिफिट्स, उसकी मार्केट वैल्यू, स्टेटस क्या होगा मार्केट में, कम होगा. So now let's compare the status, value and the facilities of a local company's manager with the multinational company's manager. तो हमारे पास एक जो मल्टीनेशनल कंपनी उसके मैनेजर की स्टेटस होगी, मार्केट वैल्यू होगी, दैट ही वर्क्स फॉर द यूनिलीवर, ही वर्क्स फॉर द पीएनजी. तो ये उसकी जो फैसिलिटी, सैलरी वो बहुत ज़्यादा होगी. तो एज कम्पेयर टू लोकल कंपनी मैनेजर, हमारे पास जो मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर है उसकी स्टेटस, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है. सो मल्टीनेशनल इज एन एक्सपेंडेड कंपनी.
मल्टीनेशनल इज अ लार्ज स्केल बिजनेस। तो इसके लिए मैनेजर चाहता है कि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ उसकी भी ग्रोथ होगी इन टर्म्स ऑफ सेल, इन टर्म्स ऑफ पे स्केल, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स, वैल्यू एंड स्टेटस। So that's why the objective of the manager is to expand the business so that he can grow as well. And employees के तो basic हमें objectives पता हैं कि for example employees proper pay scale, proper and safer working conditions, job security. तो employees कौन होते हैं? Employees are the people, they work for an organization and they apply their physical skills, they apply their mental skills to serve an organization, and they apply these skills against the compensation for work. जो उन्हें salary wages मिलते हैं उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर एंड सेफर वर्किंग कंडीशंस हो। प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस का मतलब क्या है कि देयर शुड बी नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कफोर्स। सेफर वर्किंग कंडीशंस का मतलब क्या है कि सच एज फैक्ट्रीज हो गए, माइनिंग के बिजनेसेस हो गए, कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस हो गए। तो इन बिजनेसेस के अंदर हमारे पास जो है वो डेंजरस वर्किंग कंडीशंस है। अभी लास्ट वीक हमारे पास केमिकल फैक्ट्री के अंदर जो है आग लगी साइट एरिया के अंदर। तो केमिकल फैक्ट्री जो है, केमिकल जो है दैट इज डेंजरस फॉर द पीपल or that is dangerous for the workers who are working over there or working in the premises of the chemical factory. इसी तरीके से फैक्ट्रीज होती हैं, हाई टेक मशीनरीज होती हैं, हाई वोल्टेज मशीनरीज होती हैं। तो चांसेस ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग होता है कि भाई करंट लग सकता है। और हमारे पास कंस्ट्रक्शन साइट पे चांसेस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है कि किसी को लग सकता है, कोई गिर सकता है। तो वर्कर्स चाहते हैं कि जब ऐसी वर्किंग कंडीशंस हो तो एम्प्लॉयर जो है, ओनर जो है, मैनेजर जो है, दे शुड प्रोवाइड proper equipment, proper instructions and training in order to reduce the risk of industrial accident. Working conditions proper होनी चाहिए, job secure होनी चाहिए, there should be employment contract, no unfair dismissal होना चाहिए, training provide करनी चाहिए, workers की participation होनी चाहिए. So these are the basic objective of the employees in an organization. Then we have suppliers. Suppliers कौन होते हैं? Suppliers are the individuals from the business buys the supplies. अगर फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई बिजनेस और आई हैव अ फैक्ट्री, सो आई नीड रॉ मटेरियल इन ऑर्डर टू इनेबल द प्रोडक्शन। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी प्लास्टिक की फैक्ट्री है, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है मेरे पास, एंड आई कन्वर्ट प्लास्टिक इनटू हाउस होल्ड आइटम, ग्लास बना रहा हूँ, प्लेट्स बना रहा हूँ, चेयर्स बना रहा हूँ। तो ये जो प्लास्टिक की हाउस होल्ड आइटम्स बनी है उसके लिए मुझे प्लास्टिक रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे पॉलीप्रोपिलीन चाहिए एज अ रॉ मटेरियल टू कन्वर्ट दैट पीपी इनटू अ फिनिश्ड गुड। तो सप्लायर इज गोइंग टू प्रोवाइड मी द सप्लाईज एंड द रॉ मटेरियल। तो सप्लायर चाहता है कि उसकी जो है वो सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, जैसे कि बल्क सेलिंग हो। बल्क सेलिंग का मतलब क्या है कि उसके पास जो सप्लाईज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और उसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है दैट इज टाइमली पेमेंट। टाइमली पेमेंट का मतलब ये है कि जो कमिटमेंट है, जो क्रेडिट टाइम पीरियड सेट किया गया है कि फॉर एग्जांपल इफ योर बिजनेस बाइज द सप्लाईज फ्रॉम द सप्लायर एंड द क्रेडिट डेज, क्रेडिटर डेज आर 20 डेज, 30 डेज, 45 डेज, तो उस टाइम पे उसे पेमेंट मिल जाए, कैश पे पेमेंट मिल जाए, प्रॉम्प्ट पेमेंट, इंस्टेंट पेमेंट मिल जाए। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सप्लायर्स। देन वी हैव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है टैक्सेस, और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है implementation of laws. So the basic objective of the government is to collect the taxes from the businesses that are operating in a market. तो taxes को collect करते हैं और taxes के साथ साथ government is a regulatory body. तो वो rules and regulation policies और different laws set करते हैं जो कि businesses को follow करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है इकोनॉमी को। सो दे कलेक्ट टैक्सेस एंड दे स्पेंड दिस अमाउंट ऑफ टैक्सेस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक वर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, रोड्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, ये सब कुछ बना रहे हैं। और वो जो गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमने लॉज और पॉलिसी सेट किए हुए हैं, तो बिजनेसेस जो है वो विद इन द लॉज और विद इन द जो बाउंड्री सेट बाय द गवर्नमेंट उसके अंदर ऑपरेट करें। सो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। बैंक्स, बैंक्स इंटरेस्ट, बैंक्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू अर्न इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज नोन एज सूद। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू एक्वायर अ लोन फ्रॉम द बैंक, सो यू आर गोइंग टू पे द इंटरेस्ट। बैंक आपको ऐसे तो लोन नहीं प्रोवाइड करेगा, तो जो इंटरेस्ट रेट होगा वो चार्ज किया जाएगा बाय द बैंक फ्रॉम द
consumer or the borrower who has acquired the loan. The bank operate on the interest. So interest is known as one of the profit by the bank or it's the income of the bank. तो बैंक चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी हो, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा से ज़्यादा मिले उन्हें, और जब बिजनेस एक्टिविटीज होगी, लोन एक्वायर किए जाएंगे बाय द इंडिविजुअल्स एंड द बिजनेसेस फॉर द डिफरेंट पर्पस, तो बैंक इज गोइंग टू अर्न द इंटरेस्ट एंड दैट इज द इनकम ऑफ द बैंक. तो बैंक का जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू अर्न इंटरेस्ट. ऑल सेट? इज इट क्लियर? हाँ सर, समझ आ रहा है. Then we have customers. Who are known as customers? Customers हमारे पास कौन है? Customers are the individuals who are going to buy the goods and services from the business. तो कस्टमर का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोडक्ट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी एंड प्राइसेस शुड बी लो. तो हम सब जाते हैं, हम सब जाके डिस्काउंट मांग रहे होते हैं, हम जाके बार्गेन करते हैं ताकि जो प्रोड्यूसर और दी ओनर है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को क्या करते हैं, लो करते हैं. एंड अगेंस्ट अगर हम प्राइसेस को लो चाह रहे हैं तो हम ये नहीं चाहते कि द प्रोड्यूसर एंड द ओनर इज गोइंग टू और शुड कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी. तो हम डिमांड भी करते हैं कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो और लोअर प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट. So these are the basic objective. We all are customer and we all have visit and we all have bargain for something. So high quality product and the lower prices are the objective of the customer. Then we have community. Community कहती है कि no negative externality, employment and facilities. अब नो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई टीच इन इवनिंग एज वेल. तो मल्टीपल कोचिंग सेंटर पे जाते हैं. तो वन ऑफ द कोचिंग सेंटर इन पीसीएचएस, तो वहाँ पे ड्यू टू द हाई वॉल्यूम एंड ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ द स्टूडेंट इवनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है. तो वी हैव हायर्ड नंबर ऑफ पीपल जो कि ट्रैफिक को वहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं कि भाई ट्रैफिक रुके ना, ताकि आसपास के लोग जो है वो परेशान ना. तो हमने ये जो है वो एज अ रेमेडी इस्तेमाल किया इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड द नेबर्स हु आर लिविंग ओवर देयर. तो कम्युनिटी कहते हैं कि आप बिजनेस एक्टिविटी करें. वी डू नॉट हैव एनी इशू विद द बिजनेस एक्टिविटी, लेकिन जो बिजनेस एक्टिविटीज से आउटकम के अंदर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हो रही है, पॉल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन, नॉइज पॉल्यूशन, वो नहीं होना चाहिए. प्लस बिजनेसेस रिक्वायर्ड, जैसे कबाबचीज़ है, कबाबचीज़ की एक पॉलिसी, एक स्ट्रैटेजी जो कि आप मुझे भी संडे को पता चली. तो वो ये थी कि कबाब चीज़ जहाँ पे भी लोकेट करता है, कबाब चीज़ हमें पता है ना, कबाब चीज़ बेकर्स, कबाब चीज़ रेस्टोरेंट और कबाब चीज़ एक्सप्रेस. ये जो कबाब चीज़ है वो वहीं की एरिया के लोकल्स बाय करता है. सर कराची का लोकली तो बिजनेस है, लेकिन लोकल का मतलब ये है कि अगर वो फॉर एग्जांपल इफ द बिजनेस इज ऑपरेटिंग इन नॉर्थ नासवाबाद, सो दे आर गोइंग टू हायर द पीपल लिविंग इन द नॉर्थ नासवाबाद, सराउंडिंग के एरिया के लोगों को बाय करेंगे, हायर करेंगे. इसी तरीके से अगर वो भादरा को ऑपरेट कर रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू हायर द पीपल नियर टू द भादरा. So they are generating local employment. तो वहाँ के जो unemployed लोग हैं, they will be hired by the kebabs. So generating employment gives a favorable image to a business that is operating in that area और people का support मिल जाता है. So employment is one of the objective that community wants to achieve by the business operation. तो वो चाहते हैं कि हमारी local hiring हो और जो बिजनेस यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है वो लोकली फेवर दे हमें, फर्स्ट टाइम पे हमें प्रायोरिटाइज करे व्हेन दे आर हायरिंग द लेबर ओवर द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. फैसिलिटीज क्या है कि फॉर एग्जांपल दे डिमांड फॉर द डिस्काउंट, दे डिमांड और दे वांट प्रायोरिटी ओवर द अदर कस्टमर्स. जैसे अगर कोचिंग सेंटर के अंदर लेबर को एडमिशन आता है तो वो कहते हैं कि यार हम तो आपके पड़ोसी, हम तो आपके नेबर हैं, हमें तो डिस्काउंट देना चाहिए. So this is the facility that they want to get from the business activity. So these are the objectives of the community which lives nearby or which is located or situated around the business. Then we have shareholders. Now, who are shareholders? Shareholders are the individuals who buy shares or who buy certain ownership into a public limited company by buying out the shares. जैसे we have number of companies, PSO हमारे पास कंपनी है, गंदारा इंडस्ट्रीज हमारे पास कंपनी है, इसी तरीके से HPL हमारे पास कंपनी. So these are the public limited companies. The shareholder are the potential investor. They buy shares of these companies, or they, for example, they are the indirect owner of the company, as we have studied in the public limited company. So these shareholders have an objective of high dividends,
and capital gain. So they want to get high dividends, that means high profit against their investment. Dividend is the amount of profit that each shareholder gets against the investment by buying the shares. तो जो प्रॉफिट होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी अर्न करती है उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग द शेयर होल्डर्स बिकॉज दे डिजर्व द share of profit as well because they have bought the shares and they are the owners of a public limited company. And the second objective is to capital gain. Capital gain का मतलब क्या है कि for example they want to increase or they need high value of shares. फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टर ने उसने शेयर बाय करा 100 रुपीज, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर्स की वैल्यू जो है वो 1 से 120 रुपीज हो जाए, 125 रुपीज हो जाए, 150 रुपीज हो जाए। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे सिंपली हम देखते हैं कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और 25 लैक्स 30 लैक्स, अगर वो 40 लैक्स की हो जाती है, 35 लैक्स की हो जाती है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो गेन हो गई, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। सो कैपिटल गेन का मतलब क्या है कि दे वांट्स रीवैल्यूएशन इन शेयर्स, कि उनके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। सो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स। देन वी हैव प्रेशर ग्रुप। Who are pressure group का मतलब क्या? Now let's take an example. Let's take an example from a school or a college. आपको कॉलेज के अंदर जब भी कोई फॉर एग्जांपल इवेंट करवाना होता है या if you have some sort of interest or to participate in an event or in a sports event which is going to be held at somewhere or by some college, so you use student council. Student council क्या है? Student council is the representative of the students or is the representative of the interest and the affairs of the students in front of the management, school management, college management. So pressure group का मतलब क्या है कि for example if you want to participate, अगर आप अकेले जाते हैं तो आपकी जो strength है, आपकी जो bargaining power है वो कम होगी। आपकी bargaining power, आपकी strength कम होगी because you are the only one. But you when you visit in the group or you have number of people with you and they are going to talk with the management and they are going to involve and negotiate and bargain, तो automatically strength in the group क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो हम कहते हैं ना एक से भले ज़्यादा लोग होंगे तो हमारी जो पावर होगी वो इंक्रीज होगी। तो ग्रुप का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर इन ग्रुप और व्हेन यू हैव पीपल विद यू तो ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है एंड यू कैन इजीली क्रिएट प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट और यू कैन क्रिएट प्रेशर ऑन द अदर पार्टी। सो प्रेशर ग्रुप का मतलब यही है कि हमारे पास एक प्रेशर ग्रुप होता है दैट इज नोन एज ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन सबको पता है, दोज हु आर ऑफ साइंस बैकग्राउंड, कि ट्रेड यूनियन इज फॉर्म्ड बाय द वर्कर्स एट अ वर्क प्लेस in order to show their strength or in order to protect the rights and interests from the management and from the employer. तो ट्रेड यूनियन क्या है कि वर्कर्स आपस में यूनाइटेड हो जाते हैं एंड दे इलेक्ट अ लीडर एंड दिस लीडर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर्स। तो ट्रेड यूनियन इज वन ऑफ द प्रेशर ग्रुप दैट इज फॉर्म्ड बाय द वर्कर्स एट अ वर्क प्लेस। एंड सेकंड इज हमारे पास जो प्रेशर ग्रुप है दैट इज ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का प्रेशर ग्रुप क्या है कि आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि आज से कुछ सालों पहले हमारे पास आबाद नाम का एक प्रेशर ग्रुप डेवलप हुआ था ऑफ द पीपल ऑफ द कम्युनिटी and that was to protect the rights and interests of the people and they faced loss due to the high construction rate in the Karachi. तो जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हाई राइज टावर बन रहे थे, रोड टूट रहे थे और गैस की शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज थी। So Abad was one of the pressure group that was formed by the community in order to pressurize the government to take the legal action against these construction and the construction companies and the builders. तो इसी टाइप की जो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कम्युनिटी का प्रेशर ग्रुप बनता है दैट इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। क्या तो कोई नेगेटिव एक्शनैलिटी हो रही है इन द सोसाइटी ड्यू टू द बिजनेस, कोई इशू हो रहा है और जो उसका जिसका इशू फेस कर रही कम्युनिटी, सो दिस कम्युनिटी एंड दिस रिप्रेजेंटेटिव प्रेशर ग्रुप ऑफ द कम्युनिटी इज गोइंग टू pressurize the government to take the legal action against that particular person. तो ये दो टाइप के प्रेशर ग्रुप होते हैं। तो इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव होता है कि टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द वर्कफोर्स और कम्युनिटी वाले प्रेशर ग्रुप का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द कम्युनिटी। So these are the different stakeholder groups and we have discussed the role and we have discussed the objectives they want to achieve over a period of time. तो ये हमारे पास ग्रुप्स हैं और ये उनके सबके क्या है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रुप्स समझ में आ गए होंगे एंड वी आल्सो हैव डिस्कस्ड द रोल्स ऑफ दीस ग्रुप्स एज वेल। जी बेटा, इज इट क्लियर? जी बेटा, सलमान, सार, निशा, मिर्जा, अरीफा।
I think Yes, sir, initially this is Samdar. first class, beta. Suhaib. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बेटा. So let's move ahead. Conflict between different stakeholder group. हाँ, ऑब्वियसली अगर आप देखें सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं हमारे पास, ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, दे हैव डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव. तो अगर फॉर एग्जांपल इफ देयर आर टू इंडिविजुअल्स एंड दे हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है, अब they both have different objectives. They do not have mutual objective behind this business activity. One wants to provide welfare or wants to increase the social welfare through this business, and one wants to maximize the profit. How is it possible कि अगर एक बिजनेस, एक ही बिजनेस के अंदर जो दो ओनर्स हैं, दो पार्टनर्स जो हैं, एक का ऑब्जेक्टिव है कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड वेलफेयर थ्रू आवर बिजनेस एंड वन वांट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट थ्रू द बिजनेस ऑपरेशन, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा पार्टनर्स के अंदर, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी डिफरेंट है. दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं बट दे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. तो अब जब ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होंगे बिकॉज ऑफ द रीजन है उनका कि वो इसके यहाँ से रिस्क ले रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा बिटवीन पार्टनर्स. इसी तरीके से आपस में रिलेशनशिप के अंदर व्हेन यू हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और व्हेन यू हैव डिफरेंट एम्स, तो भी कॉन्फ्लिक्ट आता है. तो इसी तरीके से व्हेन you look at the stakeholder group, these all stakeholder group are different in nature and they have different objectives to achieve. Owner चाह रहा है profit maximize हो, manager चाह रहा है expansion हो, employee चाह रहा है proper pay scale हो. So we have difference in objectives. So due to this difference in objective, there will be a clash, there will be a conflict between two stakeholder group. अब क्या आपके पास पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर यूज्ड टू आस्क कि identify, yeah, for example, briefly explain with example how conflict may arise between two of the stakeholder group. तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल है मैनेजर की, हमारे पास एग्जाम्पल है शेयर होल्डर. कि फॉर एग्जाम्पल मैनेजर का जो विजन होता है, मैनेजर का विजन होता है लॉन्ग टर्म. क्या होता है विजन? लॉन्ग टर्म होता है. वो चाहता है कंपनी परफॉर्म करे, कंपनी ग्रो करे, कंपनी एक्सपैंड करे. सो द मैनेजर हैज अ लॉन्ग टर्म व्यू रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर बिजनेस, रिगार्डिंग द ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस. And shareholder has a short-term view and the short-term vision. कि I have invested and I want dividend and I want capital gain. तो शेयरहोल्डर का जो विजन होता है और जो व्यू होता है वो शॉर्ट टर्म होता है कि वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे रिटर्न चाहिए इंस्टेंटली आफ्टर 1 year फ्रॉम द शेयर्स. तो मैनेजर, अब इशू क्या आ गया, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. एक का विजन लॉन्ग टर्म है, एक का विजन शॉर्ट टर्म है. अब हमारे पास जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर एग्जांपल $2 लाख प्रॉफिट अर्न करती है. अब शेयर होल्डर कहता है कि मुझे ये प्रॉफिट दे दो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बिकॉज आई हैव द शॉर्ट टर्म व्यू, मैंने इन्वेस्ट किया था और मुझे उसके अगेंस्ट रिटर्न मिल जाना चाहिए. एंड देन वी हैव मैनेजर जो कि कह रहा है कि इस अमाउंट को हम री इन्वेस्ट कर देते हैं इनटू अ बिजनेस सो दैट वी कैन एक्सपैंड एंड वी कैन ग्रो आवर ऑपरेशंस. तो यहाँ पे दोनों का क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया. अब अमाउंट तो हमारे पास 2 लाख रुपए की है. इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर और इट कैन बी यूटिलाइज्ड और रीइन्वेस्ट फॉर द एक्सपेंशन. तो दिस लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजर एंड द शेयर होल्डर. ये हमारे पास एग्जांपल है. इसी तरीके से हमारे पास ओनर की और कस्टमर की एग्जांपल है. अब एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना, जब आप मार्केट में जाते हैं और फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर कह रहा है कि आपको एक चीज़ पसंद आती है और प्रोड्यूसर कह रहा है कि इट्स ऑफ $100 and you are saying that $60 में देनी है तो दे दो. तो bargain, you are involved in bargaining. So bargaining is also one type of conflict between two, customer and the owner. Owner जो price आपसे charge कर रहा है, तो being a customer you are not willing to pay $100, तो आप क्या कर रहे हैं? Low prices के लिए bargain कर रहे हैं. And the producer is charging high prices in order to maximize the profit and you want to cut down the price so that you can save more. ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना हमारे पास. सो बार्गेनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेक होल्डर ग्रुप, प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर.
तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। प्रोड्यूसर ओनर ज्यादा प्राइसेस चार्ज क्यों कर रहा है? क्योंकि ही वांट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय चार्जिंग हायर प्राइसेस, एंड यू आर कटिंग डाउन द प्राइस और यू आर बार्गेनिंग बिकॉज यू वांट टू सेव मोर बाय पेइंग लेस। तो ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऑब्जेक्टिव्स के डिफरेंस की वजह से हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बिटवीन टू ऑफ द स्टेक होल्डर। ऑल सेट? नाउ मूविंग अहेड, which stakeholder group is more important? जी बेटा, मैं जिससे सवाल पूछूं वही जवाब देगा। विच स्टेक होल्डर ग्रुप इज मोर इम्पोर्टेंट? जी बेटा अरीबा, विच स्टेक होल्डर ग्रुप इज मोर इम्पोर्टेंट? जी बेटा अरीबा, एनी आइडिया विच स्टेक होल्डर ग्रुप इज मोर इम्पोर्टेंट? जी बेटा सलमान, विच स्टेक होल्डर ग्रुप इज मोर इम्पोर्टेंट? सलमान। जी बेटा निशा, विच स्टेक होल्डर ग्रुप इज मोर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू? ओके ओके निशा बेटा, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, Ahmed Usmani, which stakeholder group is more important? I need an answer. Participate, please. निशा बेटा, यहाँ तक लेक्चर समझ में आ गया? निशा अशफाक, यहाँ तक लेक्चर समझ में आ गया कि हु आर स्टेक होल्डर्स? आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, क्योंकि थोड़ा सा आपने लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू गाइड यू। टेक्स्ट में मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा किस तरीके से कोप अप करना। विच स्टेक होल्डर ग्रुप इज मोर इम्पोर्टेंट? अगर देखा जाए तो नो स्टेक होल्डर इज इम्पोर्टेंट। At first you need to consider the situation. You cannot decide directly the importance of the stakeholder के सर गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, कस्टमर इंपॉर्टेंट है, या फिर फॉर एग्जांपल जो है वो प्रोड्यूसर इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते। यू नीड टू कंसिडर द सिचुएशन। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सिचुएशनल अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच है बेटा? सिचुएशनल अप्रोच है। सिचुएशनल अप्रोच का मतलब क्या है कि एट फर्स्ट यू नीड टू कंसिडर द फैक्टर्स, यू नीड टू कंसिडर द सिचुएशन, एंड देन यू आर गोइंग टू डिसाइड which stakeholder group is more important. Now let's take an example. When a business is in need of finance, so bank is going to provide the finance to the businesses. तो in the need of finance, bank is more important. ठीक है, इसी तरीके से अगर लॉकडाउन सिचुएशन देखें तो लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर बिजनेस के अंदर ना एम्प्लॉयज इंपॉर्टेंट थे ना कुछ थे। लॉकडाउन सिचुएशन थी, कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स थे वो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे बिकॉज ऑफ दी लो रेवेन्यू जनरेटेड बिकॉज ऑफ द लो लॉकडाउन। लेकिन इसी टाइम पे अगर पीक सेशन होता है तो ये जो प्रोड्यूसर होते हैं सबकी आंखें चढ़ी होती है, कस्टमर कहते हैं कि तुम नहीं कोई और सही, अगर आप नहीं खरीदोगे तो कोई और खरीद लेगा। तो उस सिचुएशन के अंदर इंपॉर्टेंस चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे सिचुएशन को हमें कंसिडर करना है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो सिचुएशन चल रही होगी तो स्टेक होल्डर की इंपॉर्टेंस भी वैरी करेगी। So you cannot decide directly which stakeholder group is important. You need to consider the factor at first. You need to consider the situation, and that particular situation is going to decide which stakeholder group is more important. तो आपके लिए कस्टमर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए मैनेजर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए बैंक भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके लिए सप्लाई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इन दी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, जब माल की शॉर्टेज है तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा?
सप्लायर होगा, क्योंकि योर प्रोडक्शन योर बिजनेस एक्टिविटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सप्लाईज एंड ऑन द सप्लायर एट दैट टाइम। तो आपकी जो इम्पोर्टेंस होगी फॉर द सप्लायर वो चेंज हो जाएगी। So you need to consider the factors at first, and then you are going to decide which stakeholder group is more important. All right, Peter, is it clear? जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है बेटा, सबका रिप्लाई आना चाहिए प्लीज। सलमान, समी, चलिए बेटा। अब अच्छा एक और चीज देखें कि हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आप लोग मुझे बताते रहे कि ओनर हमारे पास कौन है। ओनर इज द इंटरनल स्टेक होल्डर फाउंड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर इंटरनल है हमारे पास। एम्प्लॉयज वर्कर्स इंटरनल हैं। सप्लायर्स आर आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर एक्सटर्नल। गवर्नमेंट एक्सटर्नल है, बैंक्स एक्सटर्नल है, कस्टमर्स एक्सटर्नल हैं, कम्युनिटी आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, शेयर होल्डर भी एक्सटर्नल है, और प्रेशर ग्रुप इज ऑल्सो एक्सटर्नल। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दे दूँ कि सर अगर फॉर एग्जाम्पल customers are the external stakeholder, they are outside an organization, but in school and college, in the education center, in the service parlors or salons, customers are there in an organization and they are available in the premises of an organization. तो सर हम स्कूल और कॉलेज के अंदर जो कस्टमर है, हम तो अंदर हैं स्कूल और कॉलेज के, तो हम एक्सटर्नल कैसे हुए? हम तो इंटरनल हुए। फिर इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड करिएगा कि हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी होती है, दैट इज कनेक्टेड। ये जो कस्टमर्स हैं, बैंक्स है, सप्लायर है, दे हैव हाई इंटरेक्शन विद द इंटरनल स्टेक होल्डर। कस्टमर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है विद द स्कूल टीचर्स एंड ऑल। तो इस टाइप के जो स्टेक होल्डर होते हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर एज द एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये जो कनेक्टेड होते हैं, दो स्टेक होल्डर हुआ है high connection or interaction with the internal environment and the internal stakeholders such as customer। suppliers रोज कांटेक्ट कर रहा है, बैंक से रोज ट्रांजैक्शंस हो रही है, कस्टमर से रोज ट्रांजैक्शंस हो रही है, काम हो रहा है और इंटरैक्ट हुआ जा रहा है। सो दे आर कनेक्टेड, बट यू आर गोइंग टू कैटेगराइज them as you are going to categorize external them as well। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू कैटेगराइज them external because they are outside an organization बस। तो अभी यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि कनेक्टेड वगैरह का आपका कॉन्सेप्ट नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. बेटा आई नीड अ रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। जी बेटा, सलमान, अहमद उस्मानी। हमारे पास मिर्जा हमने पढ़ा ना ऊपर यहाँ पे बेटा कि एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, ये सारे के सारे इंटरनल हैं, दे आर फाउंड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और सप्लायर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स, कस्टमर्स, कम्युनिटी शेयर होल्डर्स, ये सारे एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर। तो अब बच्चे कुछ सवाल करते हैं कि सर हम कस्टमर हैं, फॉर एग्जांपल ऑफ अ स्कूल एंड कॉलेज, सो वी आर सिटिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वी आर गेटिंग द सर्विस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम तो भी तो इंटरनल हुए। नहीं बेटा, ये इंटरनल नहीं होते, ये कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो कनेक्टेड है, हम इसको भी एक्सटर्नली कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से सप्लायर है, सप्लायर रोज इंटरैक्ट कर रहा है विद द इंटरनल स्टेक होल्डर, मैनेजर के साथ। सो इन सप्लायर भी कनेक्टेड हुआ, लेकिन आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन है, तो दे विल बी कैटेगराइज एज एक्सटर्नल। ये पॉइंट था। अब क्लियर हो गया मिर्जा? चलिए बेटा, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज पेज नंबर 1 फॉर टुडेस क्लास।
This is page number 1. And this is page number 2. All set, beta? Is it clear to everyone? चलें, okay beta, thank you so much. Allah Hafiz, take care.